Good morning everyone. So today we are going to talk about the difference between direct tax and indirect tax. So I have divided in the three columns the difference between direct tax and indirect tax. That is the first points. What point we are going to cover I will show you in the point column. So let's see what are those. First one, imposed. Second one, tax incidence. Number 3, nature of tax. Number 4, impact on cost and price of goods. Number 5, examples. And number 6, tax evasion. And the last point we have certainty. And apart from that, we have the 3 points that we will discuss with this. And now see here, these are the points that we will cover in the first slide. The first one is a imposed, tax incidence, nature of tax, and number 4 is the impact on cost and price of goods, examples, tax evasion and certainty. So let's take the first point, that is imposed on persons. So in the case of direct tax, actually the tax is imposed on the person's wealth or the total income of a particular persons. If suppose SSC cross the limit exemption limits, so the tax is charged on his total income. तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स जो इम्पोज होगा वो पर्सन्स की वेल्थ या तो उसकी जितनी भी टोटल अर्निंग होगी उस पर टैक्स इम्पोज होगा. बट in the case of indirect tax, this tax is charged or imposed on the goods and service. तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा या चार्ज होगा वो गुड्स और सर्विस पे होगा. फिर हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है टैक्स इंसिडेंस. टैक्स इंसिडेंस जो है, जो टैक्स बर्डन है, इट विल बी फॉल ऑन द सेम पर्सन्स. तो यहाँ पे जो टैक्स का जो बर्डन है वो सेम पर्सन पर रहेगा, क्योंकि इट इज़ द टोटल इनकम रिलेटेड टू द सेम पर्सन, आइदर द इनकम और द वेल्थ और द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड. तो वो एक ही पर्सन्स के रिलेटेड होगा. यहाँ पे जो टैक्स बर्डन है हम किसी पर्सन्स पे शिफ्ट नहीं कर सकते. बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंसिडेंस passes on to the ultimate consumer. But in the case of indirect tax, we can pass the tax burden from one person to another persons, but finally it falls on consumers, and the tax is collected and paid by the SSC to the government. But in the case of indirect tax, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, फाइनली जो टैक्स इंसिडेंस है, जो बर्डन है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर गिरेगा. फिर जो टैक्स कलेक्शन होगा वो एसएससी से होगा और टैक्स एसएससी गवर्नमेंट को पे करेगा एज अ मीडिएटर. फिर उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ टैक्स. नेचर ऑफ टैक्स में इनडायरेक्ट केस में जो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू in a previous class is that progressive means as income and wealth increases, even the rate of tax is increase. जैसे जैसे हमारी वेल्थ या प्रॉपर्टी या हमारी इनकम ग्रो होगी, इसी तरह रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स. बट in the case of indirect tax, it shows its nature as a regressive. Regressive means the rate of tax will be the same, but the price of goods and service may increase. So remember, it is a regressive. यहाँ पे आपकी चाहे इनकम लेस हो या मोर हो, इनकम ग्रो हो या वही लिमिटेड रहे या ज़्यादा हो या कम हो, बट रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स सेम. Then the next point we have impact on cost and price of goods. तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में जो है it will have no effect on the goods and service. यहाँ पे ये जो टैक्स का इफेक्ट है वो गुड्स और प्राइस पे नहीं गिरेगा. बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स रेट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड प्राइस. जैसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स के जो रेट इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, इसी तरह से जो ट्रेडर्स हैं वो भी
कॉस्ट और गुड्स में जो कॉस्ट है वो गुड्स और या सर्विस में भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन इन द डायरेक्ट टैक्स एंड इन द इनडायरेक्ट टैक्स। सो फर्स्ट वन, income tax, wealth tax, corporate tax. Income tax already I have defined you in the first classes, and wealth tax means property tax, and corporate tax means it is a tax which is calculated on the profit of the companies. तो यहाँ पे जो टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं वो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। बट यहाँ पे एग्जांपल आप इनडायरेक्ट टैक्स में ले सकते हैं जीएसटी का लेटेस्ट एग्जांपल्स, जो आईजीएसटी है और सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी टैक्सेस, डिफरेंट टैक्सेस आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज अ पॉसिबल in the case of direct tax. As already I have told you, I made the elaboration about the tax evasions, because the tax in the case of direct tax, the calculations processes are very lengthy and complicated for the SSE. If suppose the person doesn't have the knowledge about the direct tax and how to file the IT returns, so it will be tough to certain limit to the SSE. It is a possible of tax evasion in the case of direct tax, such as the suppose SSE has a multiple source of income, but he may hide some or more source of incomes. तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स इवेजन में काफ़ी सारे अगर आपके इनकम सोर्सेस हैं तो आप क्या करेंगे, टैक्स को बचाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को वन सोर्स ऑफ इनकम शो करेंगे, तो इस केस में टैक्स इवेजन पॉसिबल होता है। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो है गुड्स और सर्विस में इंक्लूड होता है टैक्स, तो इसमें टैक्स इवेजन की जो पॉसिबिलिटी है वो टोटली बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ना के बराबर रहेगी टैक्स इवेजन, यानी टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स की चोरी। टैक्स को किस तरह से बचाया जा सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। फिर उसके बाद सैटेनिटी। Certainty means the SSE must know that the amount payable, the जो टैक्स लाइबिलिटी की जो हमारी अमाउंट है कितनी पे करनी है, मैनर ऑफ पेमेंट्स और टाइम, किस वक्त हमें पे करना है। तो यहाँ पे सारी नॉलेज SSE को होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू पे द टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर, मैक्सिमम ये फरवरी या मार्च में होता है। तो उस केस में हमारी जो टोटल इनकम होती है उसे हमें पे करना होता है। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर, और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे सर्टेनिटी में, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर डज नॉट नो, यहाँ पे नॉट आना भूल गया मैं, कंज्यूमर डज नॉट नो व्हाट पार्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज ड्यू टू टैक्स रेट इंक्रीज, बट ट्रेडर रेज द प्राइस ऑफ गुड्स। हालांकि कंज्यूमर को ये भी पता नहीं होता कि किस वजह से टैक्स ऑफ रेट इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, बट वेन एवर द टैक्स रेट इंक्रीज द ट्रेडर ऑल्सो रेज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कुछ भी पता नहीं होता है, तो कौन सी टैक्स रेट कितना इंक्रीज हुआ है, कब इंक्रीज हुआ है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, जस्ट ही पेज द अमाउंट टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव थ्री मोर डिफरेंस। फर्स्ट वन इज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में क्या होगा, जो डायरेक्ट टैक्स इफेक्ट्स होगा वो इट इज़ अ इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन और इनकम। ये जो नंबर 8 पॉइंट है वो इफेक्ट्स रहेगा। मैं यहाँ पे लिखा तो नहीं हूँ, आपको जस्ट ओरली बोल रहा हूँ। ये इंसान पर्सनस के इनकम और वेल्थ पे इफेक्ट होगा। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे जो इफेक्ट्स होगा वो लो इनकम ग्रुप पे होगा, क्योंकि अगर उनकी इनकम कम भी है तो दे हैव टू पे द टैक्स। नेक्स्ट वन इम्बैलेंस, जो पॉइंट नंबर 9 है, इम्बैलेंस ऑफ इम्बैलेंस पॉइंट नंबर 9 इम्बैलेंस। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है इट डज नॉट क्रिएट एनी इम्बैलेंस इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता है डायरेक्ट टैक्स। बट इन द केस ऑफ
indirect case, it creates imbalances in the case in the uses of resources or the productive resources. तो ये imbalance हो जाता है, बट डायरेक्ट टैक्स imbalance क्रिएट नहीं करता है. फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब जो इंसिडेंस है, जो टैक्स बर्डन है उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिनकी टैक्स एबिलिटी है. बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स में आइदर रिच और पोर, यहाँ पे दोनों पर बर्डन पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स में होता है, यहाँ पे कुछ इट डजेंट मैटर वेदर यू आर रिच और पोर, but you have to pay the indirect tax in the case of indirect tax.